सबको जय मसीह की। We'll start with the song before we go into the word. আমরা আগে গান দিয়ে শুরু করব, তারপরে বাক্যতে আসবো। আমরা স্টার্ট করছি, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। वो ऐसे हमको बचाना, धन मन धन सभी तो तुम्हारा बचाना, चलाना। हालेलुया, 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 सभी तो तुम्हारा है, तो शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 अब दूर नहीं है किनारा, तुझको हमारे बनाना, इस मैया को रावण खोने न देना। दूर नहीं है किनारा, हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल बाइबल हम लोग खुलेंगे गीत संगीता, भजन संगीता, भजन संगीता 41, 41, साम 41। हम लोग खोलेंगे साम 41। ये ना
भजन संगीता 41। खोलो, आराम से खोलो, आराम से खोलो। भजन संगीता बेटा। नहीं, okay. Blessed is he who regards for the weak, for the Lord delivers him from the times of trouble. The Lord will protect him and preserve his life. He will bless him in the land and will not surrender him to the desire of the foes. Lord will sustain him on the sick bed and restore him from the bed of illness. I said, Lord, have mercy on me, heal me, for I am sinned against you. My enemies say of me malice. When will he die? And his name is perished. Whenever one comes to see me, speak falsely, while his heart gather slander, and he goes on and spread out abroad. All my enemies whisper together against me. They imagine the worst for me, saying, a wild disease will beset him. He will never get up from the place of where he lies. When even my close friend, whom I trust who has shared my bread, I will lift him up and on his heel again. But you, O Lord, have mercy on me. Raise me up that I may pay them. I know that you are pleased with me, for my enemy does not triumph over me. For in my integrity of my heart, and set me up in the presence of forever. Praise the Lord of Israel, for the everlasting to everlasting. Amen and Amen. Let's pray. Pratna karte. Father Lord, we thank you that you have given this first Sunday of the month of May to us to praise your holy name, that we can give you all praise, glory and honor in the name of Jesus Christ of Nazareth. That's the only name which is above all name, all principalities, all dominion that can be named in this earth, not only the names to come also. The name of Jesus is above everything. If there is a disease, if there is sickness, the name of Jesus is above the name of disease. If there is any form of problems or circumstances, the name of Jesus is above. If there is any lack or finance, the name of Jesus is above. So He will take care, because He has promised, my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. That's the promise of God, and we know that you are a promise-keeping God, and you have kept your promise in the past. You have kept your promise with us, Lord, and we want to see that manifest. We thank you for all the people who could gather around to praise your name, Lord. We bless each and every one, and that they could come from such a long distance and in this heat, Lord, because your grace and mercy has brought them together, Lord. And because you are present with us, we thank you, Lord, because you have promised that if 2 or 3 have gathered in my name, we have all gathered in your name, Lord, to praise your holy name. There is no other God beside you, and there is no other place we can go to but to worship you, Lord, to glorify your name. Thank you, Lord, for the cross of Calvary that you've given us, that speaks so good things, by better things than anything, Lord, any other blood, Lord. The name of Jesus, the name of blood of Jesus is more precious than anything else, Lord. We commit the service, we commit our pastors to come to us, and we commit each and every member here, each and every member who are watching on live TV, Lord, and we bless and protect them through the blood of Jesus Christ. We will bless all their family, all the family members. If there is any sick, lift them up, Lord, because your nail-pierced hand has paid everything on the cross of Calvary. We believe in the blood of Jesus Christ. He is more precious, more important than anything else. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. ধন্যবাদ। পেয়েছি কত আশীর্বাদ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। পেয়েছি কত আশীর্বাদ, সুখে দুঃখে সহায় হয়েছো তুমি,
সুখে দুঃখে সহায় রয়েছ তুমি, দিয়েছ মোদের ধন্যবাদ, পেয়েছি কত আশীর্বাদ, আমরাও কিছু মানুষ তোমা কবু করি না স্মরণ, জীবন পথে চলতে শেখাও, শেখা তোমার সহিতে চরণ, আমরাও কিছু মানুষ তোমা কবু করি না স্মরণ, জীবন পথে চলতে শেখাও, শেখা তোমার সহিতে চরণ, ধন্য তোমার স্বর্গারোহ, ধন্য তোমার পুনরাগমন, ধন্য তোমার স্বর্গারোহ, ধন্য তোমার পুনরাগমন, নিয়ে চলো মোদের তোমার সাথে, নিয়ে চলো মোদের তোমার সাথে, সেই অসীম সুখ স্বর্গধামে, সেই অসীম সুখ স্বর্গধামে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, পেয়েছি কত আশীর্বাদ, ধন্যবাদ, পেয়েছি কত আশীর্বাদ, খুশি 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 মানাও, খুশি খুশি মানাও, খুশি খুশি মানাও, খুশি খুশি মানাও, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाय, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाय, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह के फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। आप लोग कोई गाना है बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, अंधे को चला दिया यीशु ने, 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 अंधे को मार दिया यीशु ने, अंधे को मार दिया यीशु ने, अंधे को चला दिया यीशु ने, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, पापों से दिया यीशु ने, पापों से दिया यीशु ने, दिया यीशु ने, दिया यीशु ने, दिया यीशु ने, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, मुझे को दिला दिया यीशु ने,
मुझे को झुला दिया यीशु ने, पूरे को झुला दिया यीशु ने, पूरे को झुला दिया यीशु ने, मुझे को झुला दिया यीशु ने, मुझे को झुला दिया यीशु ने, पूरे को झुला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हाँ स्टार्ट करूँ, स्टार्ट करूँ, क्यों स्टार्ट करूँ, क्यों स्टार्ट करूँ? सबको जय मसीह की। इतना सुंदर दिन के लिए प्रभु को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो हम लोग प्रभु इस टाइम में जो हम लोग को प्रभु इस टाइम में जो प्रार्थना था, तो हम लोग को सबको इकट्ठा किए इस जगह में। पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो हाँ प्रभु, जितना लोग यहाँ पर अभी उपस्थित है प्रभु, हर एक के हृदय को में उपस्थित होइए। हर एक को प्रभु अपने पवित्र और बलवंत और समर्थी हाथों से छू करके आशीष दीजिए पिता, आशीष देकर आशीषित कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम सब की क्या घटी कमी है पिता, आप देखिए और अपने पवित्र लहू द्वारा हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारे जो सोच विचार में है प्रभु, सब घटी कमी को पूरा कीजिए पिता। और जो कुछ भी गलत सोच विचार है प्रभु, हम सबकी मन में दूर कीजिए पिता, और हमारी मन में शांति दीजिए पिता, खुशी दीजिए, आनंद दीजिए पिता। हाँ प्रभु, इतना सुंदर समय के लिए पिता, इस शाम के लिए पिता, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको। हाँ प्रभु जी। और हम कोई बोलिए, धन्यवाद दीजिए। जय यीशु मसीह की। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु से। हम जो प्रभु से धन्यवाद जनाते हैं कि हे प्रभु, हम आए हैं यहाँ पर, जितने सभी हैं उनको सभी को। कहाँ से आया वो भी बोलिए। हम जिंजीरिया बाज़ार से आए हैं, उषा नाम है, और हम अपने लड़के के लिए आए हैं यहाँ पर। सभी को ये अपना आशीर्वाद दीजिए और बच्चे को दुआ दीजिए, जो बच्चा को जो काम से लाए हैं। और जो वो ने अभी तक तो जॉब भी तो नहीं मिला है, और जो केस उस चल रहा है मारपीट के लिए, केस तो दो बार हो गया है। बच्चा को तो नाम का तो ख़राब कर ही दिए हैं। लेकिन आप धन्यवाद करते हैं जो प्रभु अच्छा करे। यहाँ पर आए हैं, यहाँ के लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, मेरा विश्वास भी है। जो हम देखे हैं, जो सुने हैं, मेरा विश्वास है। प्रभु से धन्यवाद जनाते हैं। प्रभु सब पर दया जैसे करते हैं, हम पर भी कीजिए, पूरा परिवार पर किए, यहाँ पर सभी उपस्थित लोग का सभी पर कीजिए, और इसी पर हम आमीन। रिजल्ट के लिए बोलो। क्या नाम है, पहले कहाँ से आया? जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह की। मेरा नाम प्रेमा कुमारी है। प्रेमा कुमारी। हाँ, मैं अपने रिज़ल्ट के लिए बात कर रही हूँ। मैं 12th का एग्ज़ाम दी हूँ बोर्ड, और मैं 8 तारीख को रिज़ल्ट निकलने वाला है। उसका टेंशन हो रहा है, कैसे निकलेगा, क्या होगा, इसके लिए मैं टेंशन कर रही हूँ। उसके बाद इस मास में प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा है इससे, और मेरी बहन का भी रिज़ल्ट अच्छा है 10th का, उसका भी टेंशन हो रहा है कैसे आएगा इसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। मैं आगे के लिए भी धन्यवाद करती हूँ, हमारे साथ रहिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम साक्षी सिंह है।
मैं झिंझिया बाज़ार से आई हूँ पन्नोश्री से, और मैं यहाँ पे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आप लोग के सामने मैं इतना अच्छे से परफेक्ट स्टेबल खड़ी हूँ। सब प्रभु का महिमा है, सब प्रभु का कृपा है। वरना जो अगले साल मेरे साथ जो हुआ था कि मैं स्कूल जाने की कंडीशन में नहीं थी, अभी मैं स्कूल भी जा पा रही हूँ, अच्छे से एग्ज़ाम भी दी पाई, सब कुछ अच्छे से कर पाई। प्रभु से यही प्रार्थना है कि मैं अच्छी से ऐसी रहूँ और अच्छे से मेरा पढ़ाई ऐसी होते रहे। और मैं अभी 10 का एग्ज़ाम देने वाली हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम, तो सब लोग प्रेयर करिएगा कि सब मेरा अच्छा रिजल्ट आए और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊँ। धन्यवाद। आमीन। अब बोलिए नहीं अब पिछला साल শিয়ালদা চার্চে এসেছিল না, সেই সাক্ষী এখন দাঁড়িয়েছে। শেষ হয় না, বলে শেষ হয় না। हम सब तो एक ही जगह रहते हैं ना, तो जो इसको हम देखे हैं मैंने बहुत विश्वास है प्रभु पर। जो इसका जो हाल था ना, वो मैंने हम लोग सब घबराए थे, माँ बाप तो घबराए था, लेकिन हम लोग देख कर घबरा जाते थे कि ये क्या होगा, मैंने बचने का लायक नहीं बने। कोई मेरा बच्चा भी सबको मैंने प्रभु वैसे ही होगा, विश्वास तो करके प्रभु का सिलवाने आया ना कि आप प्रभु आप है तो सब कुछ है प्रभु। हाँ हो जाए तो और वो जो घर पर जो प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाए, बस यही मानते हैं प्रभु से। और कुछ नहीं, दोनों लड़की है प्रार्थना करके हो जाए। সকলকে জয় যিশু। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই এই নতুন হিন্দিতে বলবো। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये नया दिन देखने के लिए इस फर्स्ट संडे में हम यहाँ एकत्र हो सके हैं। ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए, इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ सर के लिए, उन्होंने अपना 69th बर्थडे जो उन्होंने मनाया, ईश्वर ने उन्हें स्वस्थ रखा, अच्छे से रखा, इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आने वाले सालों के लिए भी मैं उनके लिए चाहती हूँ कि सब प्रार्थना करें। और विशेषकर मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी डॉटर इन लॉ का थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इशिता, इसकी तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग उनके लिए थोड़ा प्रेयर करें। और मेरे छोटे लड़के के वहाँ जॉब में भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करें। थैंक यू। না 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 ও অ্যাডজাস্ট করতে হবে, ঠিক আছে করুন না। सबको जय मसीह की। हम लोग एक ज़रूर हम लोग प्रभु यीशु को मानते हैं। क्यों? नहीं, बहुत सारा भगवान मतलब गॉड आया, कृष्ण देन बुद्ध देन सब कुछ आया, कोई जीवित आया वापस? कोई आया नहीं ना। प्रभु यीशु जिंदा है, ठीक तो आप क्यों घबरा रहे? हाँ आप घबरा रहे, आपका रिजल्ट क्या होगा? नहीं होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। देखो ना इनको देखो, हम लोग कितना आशीर्वाद प्राप्त है कि हम लोग जीवित ईश्वर को परिचालक होते हैं ना। जीवित हमको क्या करना है? जस्ट विश्वास करना है। तुम बोले थे हमको दोगे, तुमको देना है। तुम बोले हो कि हम तुम्हारा सब कुछ तुमको देंगे। प्रभु यीशु ने अपना जान दिया, खून दिया, ताकि हम लोग को क्या मिले? अनंत जीवन। और किसी के पास है? और किसी के पास अनंत जीवन है? नहीं ना। प्रभु यीशु के पास है। हम लोग अगर उनको प्रेयर करें
धन्यवाद करें वो खुश होते हैं। एक ही चीज़, हम लोग का पैसा वो मांगते नहीं है, हम लोग का प्रॉपर्टी नहीं मांगते हैं, हम लोग खाली धन्यवाद मांगते हैं। खाली हमको धन्यवाद दो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तुम ना पक को ऐसा रखो, इंजॉय करो, कोई बात नहीं, बट हमको धन्यवाद दो। खाना खाया, धन्यवाद दो। जीवित उठे, मतलब सो के उठे, धन्यवाद दो। बाजार से वापस आए, कोई कुछ नहीं हुआ, धन्यवाद दो। काम मिला, धन्यवाद दो। नहीं मिला तो भी धन्यवाद दो। आपके लिए हम बोल रहे फर्स्ट मतलब सॉरी मार्क 11 मार्कुस का चैप्टर 11 अध्याय 24 पद पढ़िएगा प्लीज। मार्कुस 11 अध्याय 24 पद। मार्कुस 11 अध्याय 24 पद। मार्कुस कहाँ जा रहा है? मिला? इधर पढ़ो। एक तो आस्ते जाओ, एक तो आस्ते पढ़ो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। मैडम, रिजल्ट मिल गया। देखे नहीं कोई बात नहीं, मिल गया। रिजल्ट अच्छा होगा, आपका जॉब आएगा, आपको नौकरी आएगा, और हमको सुकून मिलेगा कि हम लोग जीवित परमेश्वर को पूजा करते हैं, कि वो हमारा सुनता है और बोलता है क्या, तुम जो कुछ मांगे हो विश्वास करो, तुमको मिलेगा। मिल गया है ना, मिल गया है तो तुम्हें मिल गया, मतलब रिजल्ट नहीं निकला, मिल गया। रिजल्ट अच्छा होगा। आज हम एक चीज़ मेन देखेंगे कि जब शैतान ने परमेश्वर को परीक्षा करा था, यीशु पर परीक्षा करा था, इफ़ यू आर द सन ऑफ गॉड, अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो, ये पत्थर को रोटी बनाओ। प्रभु जी ने क्या बोला? इट इज रिटन, ये लिखित है कि मनुष्य रोटी से नहीं बचेगा, बट बाय द वर्ड, बट एवरी वर्ड दैट प्रोसीड फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। हम लोग जब लिखित बात को बोलेंगे ना, उसको शैतान रुक नहीं पाएगा, उसके बाद शैतान कुछ नहीं बोलेगा। जीवित वाक्य जब हम बोलेंगे तो जीवित वक्त से बोलेंगे तो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। वो भी जानता है, बाइबल भी जानता है। इसलिए बोला ना, ये जो पत्थर है उनको, ये पत्थर को क्या पत्थर है जिससे वो लॉ लिखा था ना, की बोले तो लॉ लिखा, लॉ ऑफ मोसेस, वही पास पे की बोले 10 है जिसमें लिखा है ना, हाँ 10 कमांडमेंट। वो बोला तुम ये पत्थर को तुम रोटी बनाओ। प्रभु जी ने बोला क्या? मनुष्य रोटी से नहीं बचेगा, किससे बचेगा? बाय वर्ड ऑफ गॉड। आज परमेश्वर का क्या बोला? ईश्वर का मुंह से जो वाक्य निकलता है, वचन जो निकलता है ना, उसी से मनुष्य बचेगा। मतलब हम लोग जब बोलेंगे लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट, हो गया। लॉर्ड इज माई शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट, मतलब हमको कोई कमी नहीं होगा, कुछ ही चीज़ में कमी नहीं होगा, किसी चीज़ में कमी नहीं होगा। पैसा, धन, दौलत, खाना पीना, पहनना, किसी चीज़ में कमी नहीं होगा। क्यों? कि परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमको चलाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ईश्वर के वाक्य जो है उसको बोलते जाओ, उसको बोलते जाओ,
जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बोलते हो लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वॉन्ट, माई लॉर्ड विल सप्लाई ऑल माई नीड्स, लॉर्ड विल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी। उनका धन से हमको देगा, ऑल, कुछ नहीं, सब कुछ, पार्टली नहीं, सब कुछ। जब बोला है तो होगा। जब आदि पुरुष की उत्पत्ति, अच्छा, जेनेसिस में क्या बोला है? 10 दफे ईश्वर ने बाघ को बोला है। तो लेट देयर बी लाइट, आया, लाइट आया था, लाइट आया था कि नहीं? नहीं आया, आया, हाँ। और 10 दफे जो बोला है, 10 दफे वही काम हुआ। लेट दे बी लाइट, लाइट आया। लेट दे बी एनिमल्स, एनिमल्स आया। लेट दे बी प्लांट, हाँ प्लांट्स आया। तो आज वो वाक्य सामत नहीं होगा, जब पहले हुआ था आज नहीं होगा। बिकॉज बाइबल क्या बोल रहा है? गॉड इन द बिगिनिंग वॉट ही वॉज, जो थे आज है, अब कल भी रहेंगे। हम लोग गुजर जाएंगे, परमेश्वर कहीं नहीं जाएगा। तो उनका वाक्य समर्थ होगा, उनका वाक्य प्रकाशित होगा। और जब हम मांगे हमें मिलेगा, मांगो तुम्हें मिलेगा। दरवाजे में खटखटाओ, तुम्हारा दरवाज़ा खुला जाएगा। दरवाज़ा खटखटाओ, खुलेगा। प्रॉमिस है बाइबल में, मेरा वाक्य नहीं, मेरा वाक्य नहीं, ये परमेश्वर का वाक्य है। तो होगा, ये होगा। हमको हम आपको गाइड नहीं दे रहे। हम जब क्लास 9 में थे, यही घर में मेरा पिताजी गुजर गए, अर्थली फादर। हमारा कोई फिक्र नहीं, मेरा जिंदा परमेश्वर जिंदा है, वो देखभाल करेगा। आज तक किया है, 51 साल चला गया। तो हम आपको जीवित एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई घटी कमी नहीं हुआ। चारों भाई को पढ़ाया, छोटे भाई को, और चारों को शादी भी करवाया। ये जीवित परमेश्वर का काम, मेरा काम नहीं है। हम तो माध्यम है, हमको जो बोला गया हम किए। और अभी तक मेरा 2 बेटा है, एकदम तंदुरुस्त है, एकदम ठीक है। हाँ, मालूम है मेरा बहुमा का थोड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ है। छोटा बेटा का जॉब में प्रॉब्लम है, निकल जाएगा। जब मेरा परमेश्वर पिता जब हमको एश्योरेंस दे रहा है, मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो दरवाजा खुला जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। मिलने का पहले धन्यवाद देंगे, मिलने के बाद भी धन्यवाद देंगे। हम लोग का काम ही एक ही चीज़ है, धन्यवाद देना है। ठीक है? पसंद है? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। সবাই তো হিন্দিতে বলে, কারণ বাংলা আতা হয় না। হ্যাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে সুন্দর দিনের জন্য। বিশেষ করে আজকের দিনটা হলো 1103 1103 দিন আমরা অনলাইনের মাধ্যমে, আমাদের বিশপ শ্রীকান্তের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের বাক্য শুনছি, প্রার্থনা করছি, ধন্যবাদ দিচ্ছি। ঈশ্বর আমাদেরকে সময় সুযোগ করে দিয়েছে, এর জন্য ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ দিই যে সুস্থতা রয়েছে। আমি স্যারকে বলছিলাম যে 2 দিন আগে আমি একটা সিটি সিভিল কোর্টে গিয়েছিলাম। তা একটি অ্যাবাউট 50 বছর হবে, যে সে পুরো এই কোমরে কিছু একটা সমস্যা আছে, সে মাথাটা একদম পুরো নিচে করে যাচ্ছে হাতে লাঠি করে। আর তখনই আমার মনে হলো যে ঈশ্বর আমাকে কত ভালো রেখেছে। মানে আমরা যখন ওই অবস্থাগুলো দেখি তখন আমরা সত্যি ভাবি যে আমরা কত ঈশ্বর থেকে গ্রেস। আজকে আমি সুস্থ আছি, কালকে অসুস্থ হয়ে যেতে পারি, কিন্তু তিনি যে সুস্থ রেখেছেন। রাত্রেবেলা আমি অনেক সময় দেখি যে হঠাৎ করে দেখছি পাটা অবশ, মানে হচ্ছে না, নড়ছে না ভালো করে, হয় না, কখনো ঝিমঝিম ধরছে, আর সবই নার্ভাস সিস্টেম। যাই হোক না কেন, অনেক সময় আমরা এক পাশে থাকলে কোনো যে হয়তো ব্লাড সার্কুলেশন হচ্ছে না, হয়তো ঝিমঝিম করছে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে সুস্থ রেখেছে।
এই ধন্যবাদ প্রশংসা গৌরব যেন আমরা সবসময় করতে পারি, এইটাই আমাদের জীবনে বড়। কারণ আমরা যত ভালো করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রশংসা গৌরব করতে পারি, তখনই মনে রাখতে হবে যে আমাদের জীবন ধন্য। তাই আমরা সময় সুযোগ নিয়েছি, এর জন্য সকলকে ধন্যবাদ যে সকলে আমরা কথা বলেছি। এবং আরেকটা কথা বলি যে ঈশ্বরের কাছে আমরা কোনো জিনিস বিফল হয়ে আসে না, মানে আমি যা চাই আমি তাই পাবো। এখন হ্যাঁ, এইটা হতে পারে যে আমি এখন যেটা বলছি এখনই হলো না, হয়তো 2 দিন পর হতে পারে বা 2 মাস পর হতে পারে। কেননা আমি বলি, ঘটনাটা একটা বলার আছে। আমি যখন কলেজে মানে স্কুল থেকে পাস করলাম, তখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং চান্স পেয়েছিলাম। তাই ইঞ্জিনিয়ারিং আমি কিন্তু পড়তে পারিনি। কারণটা কি? কারণ পাইনি হলো তখন আমার বাড়ির বাবার টাকা পয়সা ছিল না, যার জন্য আমি পড়াশোনা করতে পারিনি। তাহলে তখন ওই অবস্থায় কিন্তু আমার কষ্ট হয়েছিল যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিংটা পড়তে পারলাম না কেন। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। আজকে আমি ব্যাংকের ম্যানেজার হয়েছি, এবং ভাইদের আমি দেখেছি বা পরিবার করতে পেরেছি। আজকে যদি ইঞ্জিনিয়ার হতাম, আমি হয়তো স্টেটের বাইরে চলে যেতাম, ওয়েস্ট বেঙ্গল, আমি হয়তো ভাইদের দেখতে পারতাম না। কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা একটু অন্যরকম। আমরা আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের চিন্তাতে আমরা সবসময় ভাবি যে এটা হলো না কেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জন্য বেটার ভাবে, যার ফলে আমার জীবনে আমি বুঝতে পারছি যে তার পরিকল্পনা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার চেয়েও আজকে কিন্তু আমি অনেক বেটার পজিশনে রয়েছি। সুতরাং এইটাকে মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বর আমাদের সবসময় কিন্তু আমাদের চিন্তার চেয়েও বেশি ভালোবাসে। এর জন্য হিতোপদেশে বলছে যে তুমি তোমার চিন্তা ভাবনা দিয়ে সব কিছু ভেবো না, কিন্তু সকল কিছু ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দাও, কারণ তিনি আমাদের জন্য আরও মহৎ কিছু ভাবে। ये बात हमको समझ में आना चाहिए যে हमारा जो भी हमको समझ में आता है वो हमारा सोचना যে हमारा इंजीनियर ডাক্তার অ্যাডভোকেট जो भी है अच्छा है, लेकिन ঈশ্বরের পরিকল্পনা একটু অনেক ভালো, অনেক সুন্দর। এবং সেটাই মনে রাখতে হবে, আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা জিনিস ঈশ্বর দ্বারা পরিকল্পিত। তাই আসুন আমরা প্রার্থনা করি। করুণাময় ঈশ্বর, তোমায় ধন্যবাদ প্রশংসা গৌরব করি যে তোমার দয়া করুণা অপরিসীম। তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছো, তত্ত্বাবধান করছো, সুস্থতা রেখেছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। আজকে উপাসনার দিন এবং 1103 দিন অনলাইনের মাধ্যমে তুমি আমাদেরকে সময় সুযোগ দিয়েছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। বিশেষ করে ধন্যবাদ দিই প্রভু যে আমাদের কোনো যোগ্যতা ছিল না, আমাদের কোনো গুণ ছিল না, আমাদের কোনো ধার্মিকতা লেশমাত্র ছিল না, কিন্তু তোমার একমাত্র প্রিয়তম পুত্র খ্রিস্টের রক্তের তাই তুমি আমাদেরকে পরিত্রাণের আস্বাদন দিয়েছো, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। প্রভু, তুমি আমাদেরকে সময় সুযোগ দিয়েছো, এই সুন্দর সন্ধ্যায় আমরা একত্র হয়ে তোমার গৌরব প্রশংসা করার সুযোগ দিয়েছো। যারা এসছেন প্রভু, তাদের প্রত্যেকের হৃদয়কে তুমি কথা বলো, তাদের প্রত্যেকের জীবনকে তুমি আশীর্বাদ করো, তাদের যা কিছু ইচ্ছা বিনতি প্রার্থনা যা কিছু আছে তুমি গ্রহণ করো, এবং তুমি তাদের সময় উপযোগী এবং তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের জীবনে কার্যকরী করে তোমার গৌরব প্রশংসা তুমি প্রকাশ করো। ধন্য তোমার নাম। বিশেষ করে আজকে আমাদের দেবদত্ত বাবুকে তোমার হাতে রাখলাম প্রভু, তুমি তার জীবনকে তুমি আশীর্বাদ করেছো, এবং আজকে তার 69 বছর তিনি পদার্পণ করেছেন। এর জন্য তোমার ধন্যবাদ দিই যে তা আমাদের হাতে তোমার জীবন নয়, কিন্তু তুমি তাকে সুযোগ করে দিয়েছো যেন তোমার গৌরবে যেন তার জীবনকে ব্যবহৃত করতে পারে। তিনি যে কাজকর্ম করেন, ছেলেপেলেদের যে পড়ান, সেই ছেলেপেলেদের মধ্যে দিয়েও যেন তোমার ঈশ্বরের বাক্যকে প্রকাশ করতে পারেন, তারাও জীবনের মধ্যে দিয়ে তোমাকে যেন ধরে চলতে পারে, তুমি সাহায্য করো। বিশেষ করে তার ওয়াইফকেও তোমার হাতে রাখলাম, তুমি তাকেও ভালো রেখেছো, সুস্থতা রেখেছো, এবং বিশেষ করে তার বড় ছেলে এবং বড় বৌমা যারা রয়েছে তাকেও তুমি আশীর্বাদ করো। বড় বৌমা যে শারীরিক অসুস্থতা রয়েছে প্রভু তুমি জানো, প্রভু তোমার দয়া করুণা অনুগ্রহে তুমি তাকে সুস্থতা প্রদান করো, তাদের পরিবারকে ভালো রাখো, সুস্থতা রাখো, আশীর্বাদ করো। বিশেষ করে ছোট ছেলে যে বিদেশে রয়েছে, তারও যে চাকরি সংক্রান্ত যে সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্যা দূর করে তোমার উপস্থিতি, তোমার দয়া করুণায় তুমি চালনা করো, গাইড করো, যেন তার জীবনের মধ্যে দিয়ে তুমি উচ্চকিত প্রশংসিত গৌরবান্বিত হতে পারো। বিশেষ করে আমরা প্রার্থনা করি প্রভু, আমাদের সিস্টার সিং যে এসছে প্রভু, তুমি তাকেও ভালো রেখেছো, সুস্থতা রেখেছো, তার পরিবারের সকলকে নিয়ে আজকে এসছে প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিয়েছে, প্রশংসা দিয়েছে, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। বিশেষ করে প্রেম কুমারকে তোমার হাতে রাখলাম, মেয়েটিকে প্রভু তুমি তাকেও আশীর্বাদ করো, তার যে হায়ার সেকেন্ডারি এক্সামের রেজাল্ট বেরোবে তাকে তুমি আশীর্বাদ করো, তার জীবনে কি করতে হবে, কিভাবে এগোতে হবে, সকল কিছু তুমি তদারকি করো, আশীর্বাদ করো, এবং তোমার উত্তমতায় চলতে সাহায্য। আমাদের সাক্ষী সিংকেও তোমার হাতে রাখলাম প্রভু, সাহায্যের জন্য আমরা আগে অনেক প্রার্থনা
প্রার্থনা করেছি, কিন্তু তুমি তাকে সুযোগ করে দিয়েছো। তার শারীরিকভাবে যা কিছু দুর্বলতা যে রয়েছিল, প্রভু খ্রিস্টের রক্তেতে তুমি তাকে সুস্থতা প্রদান করেছো। এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। আগামী দিনগুলো যেন পড়াশোনা শিখে যথার্থ তোমার সন্তান হতে পারে এবং তার জীবনের মধ্যে দিয়ে তুমি উচ্চকিত, প্রশংসিত, গৌরবান্বিত। আমরা বিশেষ করে তাকে সুস্থতা প্রদান করো এবং বিশেষ করে আমাদের যে সিস্টার এসছেন আজকে, প্রভু তাকেও তোমার হাতে রাখলাম। প্রভু তার জীবনকে তুমি আশীর্বাদ করো, দয়া করো, করুণা করো। তার যা কিছু সমস্যা থাকুক না কেন, যা কিছু অসুবিধা থাকুক না কেন, খ্রিস্টের রক্তেতে তুমি তার জীবনকে আশীর্বাদ করো এবং তোমার উত্তমতায় তুমি চলতে সাহায্য করো। তার যে চাকরি বাকরি, যা কিছু পারিবারিক যে প্রয়োজন রয়েছে, প্রভু তুমি জানো। প্রভু তুমি তাদেরকে আশীর্বাদ করো, দয়া করো, অনুগ্রহ করো। বিশেষ করে প্রভু আমাদের সোনালির জন্য প্রার্থনা করি। প্রভু তুমি শারীরিকভাবে সে অসুস্থ ছিল, প্রভু তাকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে, বিভিন্ন যে টেস্ট করা হবে, প্রভু তুমি তাকে সাহায্য করো, দয়া করো, অনুগ্রহ করো এবং তুমি তাকে সুস্থতা প্রদান করো। প্রভু বিভিন্ন সময় সে রোগ হয়ে যাচ্ছে, রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। প্রভু শয়তান বিভিন্নভাবে তাকে সমস্যায় সৃষ্টি করছে এবং পারিবারিকভাবে সমস্যা হচ্ছে। প্রভু তার জীবনকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম। তুমি তাকে সুস্থতা প্রদান করো, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থতা দান করো। বিশেষ করে বিশপ শ্রীকান্তকে তোমার হাতে রাখলাম। প্রভু তুমি তাকে আশীর্বাদ করো, দয়া করো, অনুগ্রহ করো এবং বিশেষ করে তুমি তাকে ব্যবহার করছো। তোমার খ্রিস্টের বাক্যেতে তুমি তাকে চালনা করছো। তোমার প্রেমে, আনন্দ, শান্তিতে তাকে সাহায্য করো এবং তোমার জ্ঞানে তুমি তাকে চালনা করো। যে সেই বিষয়গুলো আমাদের প্রকাশ করেন প্রভু, সেই বাক্য যেন আমরা শুনে যেন তোমাদের খ্রিস্টেতে বেড়ে উঠতে পারি, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো। তার অভিষেক এবং আশিসকে তোমার হাতে রাখলাম। তুমি আশীর্বাদ করো। যেহেতু অভিষেকের আবার 2 দিন আগে তার জন্মদিন গেছে, প্রভু এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি, তুমি প্রশংসা গৌরব করি। প্রভু তুমি তাকে সুস্থতা প্রদান করো এবং যতদিন পৃথিবীতে থাকবে তুমি তোমার গৌরবের জন্য ব্যবহার করো এবং আমাদের আশিসকে তোমার হাতে রাখলাম। শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞানের, বুদ্ধিতে তুমি চালনা করো। প্রভু তুমি যারা অনলাইনে রয়েছে, প্রভু তাদেরকে আশীর্বাদ করো, দয়া করো, অনুগ্রহ করো। প্রভু যারা বিভিন্নভাবে যাদের অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে, সেই অর্থনৈতিক সমস্যায় তোমার হাতে রাখলাম। প্রভু তুমি তাদেরকে সাহায্য করো, দয়া করো, অনুগ্রহ করো এবং বিশেষ করে যারা অসুস্থতায় রয়েছে তাদেরকে সুস্থতা প্রদান করো। যারা বিভিন্নভাবে চাকরি বাকরি সমস্যায় রয়েছে তাদেরকে চাকরি প্রদান করো। যারা ব্যবসায় সমস্যা রয়েছে সেই ব্যবসায় উন্নতি হতে সাহায্য করো। বিশেষ করে যারা চাকরি বাকরি, যারা পড়াশোনা করছে সেই পড়াশোনায় তুমি তাদেরকে গাইড করো যেন সুন্দরভাবে তারা পড়াশোনায় সুশিক্ষিত হতে পারে এবং যারা বিভিন্ন রকম অশান্তির মধ্যে, কষ্টে রয়েছে, সমস্যায় রয়েছে, তুমি তাদেরকে সেই সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ করো। প্রভু আমরা বিশেষভাবে প্রার্থনা করি। প্রভু আমাদের দেশে এখন লোকসভার ইলেকশন চলছে। প্রভু তুমি জানো, প্রভু তুমি যোগ্য প্রার্থীকে তুমি আমাদের দেশে মনোনয়ন করো প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, তার দলকে, এবং আমরাও যেন আনন্দ শান্তির সঙ্গে থাকতে পারি। প্রভু তুমি সাহায্য করো। বিশেষ করে আরও প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের ইরান এবং ইসরায়েলের জন্য যে ঝামেলা বা সমস্যা রয়েছে, প্রভু একটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রভু তোমাকে সময়ের কাছে রাখলাম। প্রভু আমাদের যারা লিডার্স রয়েছে, ওয়ার্ল্ড লিডার্স রয়েছে, পলিটিক্যাল লিডার্স রয়েছে, তাদেরকে তোমার হাতে সমর্পণ করলাম। তুমি তাদেরকে গাইড করো যেন বিভিন্ন যারা তাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে তুমি আশীর্বাদ করো, যেন সকল রকম এই ঝগড়া, বিবাদ, অশান্তি থেকে যেন আমাদের পৃথিবী সুরক্ষিত থাকে এবং আমরা যেন আনন্দ এবং শান্তিতে বসবাস করতে পারি, তুমি সাহায্য করো। বিশেষ করে আমাদের যে বাক্য আমরা এখন বিশপ শ্রীকান্ত আমাদের পরিবেশন করবে, প্রভু তুমি তাকে সাহায্য করো। আমাদের পবিত্র আত্মাটা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করো, দয়া করো, অনুগ্রহ করো এবং তোমার উপস্থিতিতে তুমি চালনা করো। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ভালো রেখেছো, সুস্থতা রেখেছো, ব্যবহার করছো, যে তোমায় ধন্যবাদ করি। সকল গৌরব, প্রশংসা, স্তুতি তোমারই হোক। প্রার্থনা যিশু নামে চাই, আমেন। सबको जय मसीह की। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर आप लोग को सही सलामत रखा और जितने लोग यहाँ पर पहली बार आया और सबके लिए हम जोर से আমরা ताली मारबो एवं धन्यवाद देवो। थैंक यू, वेलकम यहाँ पर नया आने के लिए। ये जो छोटा जो प्रेयर्स फेलोशिप है, परमेश्वर आप लोग को बहुत ऐसे आशीष करे। परमेश्वर आपको जीवन में बहुत ऐसे अनुग्रह करे और प्रभु आपको जीवन में प्रभु दया, कृपा, करुणा से आपको भर दे। और जो मकसद में यहाँ पर आया
और सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा काम करेंगे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा है हर जगह में हर समय में जो तेरे ऊपर में जो कुछ परिकल्पना है वो अवश्य ही वो फल होगा। बिलीव करते ये बात करता है क्या? हालेलुया, प्रेज गॉड। जब आप लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लोग इतना गर्मी बाहर में, ये गर्मी में बाहर से कोई आदमी नहीं निकाल रहे हैं ना, सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक कोई निकाल रहा है, लेकिन आप इतना दूर से ब्याला पौर्णश्री से वहाँ से दूर के यहाँ पर आया कुछ मकसद के लिए, कुछ परिकल्पना की, कुछ योजना के लिए। लेकिन प्रभु ये उतना वहाँ से इतना तक आया किस लिए आया? प्रभु से क्या किस लिए आया? आदमी लोग दार्जिलिंग में जाते किस लिए? घूमने। हम लोग को म्यूजियम, विक्टोरिया और मिलेनियम पार्क यहाँ पर जाने के लिए, क्या घूमने के लिए। तो यहाँ पर आया किस लिए? यहाँ पर आया विनती और प्रार्थना करने के लिए। यहाँ पर विनती प्रार्थना करके क्या मिलेगा? प्रभु को जब विश्वास है उनका कि प्रभु मेरा काम कर सकते हैं, प्रभु ही कर सकते। तो इतना सब कुछ माने घूमते फिरते प्रभु के पास अंत में आया, क्योंकि अंत में जब कोई आता है, मतलब जैसा साक्षी एक साल हो गया, तो उसके जीवन में भी ऐसे परेशानी थे। और उसका मम्मी कलकत्ता में, अभी भी गांव में नहीं है, कलकत्ता में पढ़ाई लिखा सब कुछ यहीं पर है, लेकिन सब कुछ करने का बाद सब कुछ माने एकदम थक चुका, हाँ कि नहीं? हॉस्पिटल से लेकर कितना मंदिर मस्जिद जितना सब कुछ होने का बाद अंत में किसका शरण लिए? प्रभु यीशु का शरण लिए। तो प्रभु का पास कोई शरण लेता है तो प्रभु वो देखता है वो लोग को विश्वास कितना है। अब लोग सोचते हैं यहाँ पर आएंगे कुछ खर्चा होगा, बाऊ कुछ नहीं है। परमेश्वर आपका जीवन में 2 चीज मांग रहे हैं, टूटा हुआ दिल और आँख का आंसू। अभी आपका बेटा का परिस्थिति जो बिगड़ रहे, इस वजह से आप यहाँ पर आया, इसीलिए क्योंकि बेटा से जल्द उसको कुछ काम मिले, उसको जल्द से जल्द उसको रास्ता को निकले। उसका बाद आपका बेटी का 8 तारीख का उसका रिजल्ट, वो भी सोच रहे, क्योंकि आज 5 तारीख है, 2 दिन का बाद उसको भी रिजल्ट है। क्या आने वाला है, क्या होगा, कुछ नहीं है, लेकिन सबके पीछे में एक चीज है, वो है आशा, होप। नहीं आशा है ना? आगे साक्षी का भाई साक्षी दोनों में इन लोग को आशा है, बड़ा हो के हम ये बनना है, बड़ा है कि ये काम करना है। जैसा अभी हम लोग को रेवरेंड काशीनाथ बसक जो बोला, हमको इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए इच्छा थे, लेकिन उस परिस्थिति में फिलहाल हमको पैसा नहीं थे, इसीलिए हमको इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर सकते। नहीं तो इसी वजह से हम लोग को सर भी ये बात बोला, ब्रदर देवदत्तो दास वो भी ये बात बोला, क्योंकि मेरा जब ये इस घर से मैंने यहाँ पर खड़ा होके, और वो लोग भी सेम उसको परिकल्पना थे जो कुछ करना है, लेकिन हम लोग एक सोचते हैं और मेरे से ऊपर बेटर सोचता है परमेश्वर प्रभु यीशु। हालेलुया। तो ये प्रभु का धन्यवाद करें। आज इसलिए आया आप कुछ पाने के लिए, होप, आशा, नहीं, हाँ कि नहीं? आशा। तो ये आशा कभी आप निराशा नहीं होगा, क्योंकि वचन में हर जगह में लिखा, अगर तू विश्वास किए, तू जांच ले, परख ले, और तुझको मिल गया। क्या विश्वास करते हैं? हाँ। तो इतना दूर से आप आया, बिहार से आया। हाँ, अच्छा, चलो तो रविंद्र बिहार से आया यहाँ पर कुछ पाने के लिए। तो प्रभु ये वचन में अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, जिसको जल्दी मिलेगा जोर से, सिस्टर ईवा अगर मिले तो जल्द से जल्द जोर से आपको पढ़ना है। अगर
मेरा सामने आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए आप, ये कुर्सी में आ जाइए, छोटा में आइए। हम लोग खोले जिरामिया 29:11। ये वचन हम लोग सब लोग जानते, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। जिरामिया 29:11 में परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, देखिए वहां पर क्या बोल रहा है। जिरामिया 29:11। यहोवा की यह वाणी है। देखिए ये आप सुनिए साक्षी, आप देखिए करिए, यहोवा का यही वाणी है, मेरा वाणी नहीं है। हम यहाँ पर वचन खोल कर बैठे, आप लोग बहुत आदमी लोग जो गुरु जी के देखते हैं, गुरु जी का वाणी है नहीं, पंडित का जो जाएंगे पंडित का वाणी है नहीं। यहाँ पर पंडित का ना तो पंडित, ना गुरु जी, ना बड़ा फादर। आप चर्च में आया, आप सोचे बड़ा फादर, नहीं, ये मेरा वाणी नहीं है। किसका वाणी है? यहोवा का वाणी है, अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु का वाणी है आपके लिए और मेरे लिए। ये वाणी सबके लिए। क्या बोले? ये वाणी है, क्या वाणी? कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पना तुम्हारा विषय करता हूँ, मतलब आप जितने लोग यहाँ पर नया आया, पहली बार आया, जो कल्पना, जो परिकल्पना कौन की है? यहोवा। कौन की है? मेरे साथ बोलना है, हाँ, नहीं तो यिर्मयाह, आप एक काम करिए, सब कुछ बंद करिए, पहले लिखिए, बाद में जाके घर में खोलेंगे। तो यहाँ पर यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, ये वाणी है, कल्पना तुम्हारा लिए एक कल्पना बनाया। नहीं तो बिहार से तुम पागल नहीं है, इतना पैसा खर्चा करके इतना गर्मी में यहाँ पर आएंगे, क्या मिलेंगे? लेकिन परमेश्वर का परिकल्पना है तुम्हारा लिए। यहाँ पर जितने लोग हैं, और लाइन भी, ऑनलाइन में भी जितने लोग हैं, ये परमेश्वर का परिकल्पना है तुम्हारा और मेरे लिए। क्या परिकल्पना है उसको बोलिए? कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। कौन जानता है? एक टाइम में हम लोग गुरुजी के पास जाते, गुरुजी मेरा हाथ देकर बता दीजिए क्या जानते मेरे विषय में। हाँ, होता है ना, फादर, चर्च का फादर, मौलवी कितना पास जाता है, गुरुजी एक बार हाथ देकर बता दीजिए। हम लोग टोल में चला जाता है, हम लोग ज्योतिष का पास चला जाते हैं, एक बार मेरा ग्रह नहीं ठीक चल रहा, मेरा ग्रह में ये सब हाथ देख के बता दीजिए। और यहाँ पर ना तो फादर, ना तो मौलवी, ना तो गुरुजी, ना पाईगुरु, कोई नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु बोल रहे हैं, ये जो कल्पना किसके लिए? तुम्हारा लिए जो कल्पना। और क्या बोल रहे हैं? वे हानि की नहीं। वो क्या नहीं है? हानि की नहीं है। और क्या है? वरन कुशल ही की है। आमीन, हालेलुया। ये कुशल के लिए है, तुम्हारा 8 तारीख का कुशल के लिए है। तुम जो यहाँ पर आया तुम्हारा कुशल के लिए। और क्या बोल रहे हैं? और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अंत में तेरे फल पूरा करेंगे। आमीन। आमीन का मतलब है हम जो बोला परमेश्वर का नजर से ही हो। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर तुम्हारे लिए जो 8 तारीख का परिकल्पना है, वो जो बेटा तो इतना दूर से आया उसके लिए परिकल्पना परमेश्वर बोल रहा है, ये आशा होगा। ये मेरा बात नहीं है, ये मेरा वाणी नहीं है, ये परमेश्वर प्रभु यीशु ये वाणी आपके लिए बनाया, मेरे लिए बनाया। तो इसीलिए हम लोग क्या एक टाइम में सोचते हैं कैसे तरफ हो गई, ये कैसा बहुत आदमी लोग बोलते हैं। अगर आपका जीवन में सफलता चाहेंगे तो एक काम करिए। क्या करना है? आपको योग करना है, बोलता है ना, आपको हवन बोलता है, हवन करना है। आपको घर में हवन कर दीजिए। ये जो बूढ़े छाया है, हवन करने से बाद ये बूढ़े छाया चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्रभु का वचन बोल रहा है, ये हवन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, जिंदा है, वो अभी भी काम करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर अभी भी काम करता है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, जितने लोग यहाँ पर हैं, परमेश्वर काम करता है। ये कुशल का। हम लोग को भी तो बोल रहे थे सब लोग कि ग्रह दिखाओ, पूजा कराओ। हाँ, ग्रह दिखाओ, अंगठी पहनाओ, पत्थर लगाओ, बहुत कुछ बोला। हम बोले क्या चीज का खुशी में करें? पागल हो जाएगा, कभी गिर जाएगा, मर जाएगा, स्कूल जा देगा, ऐसे
तो इसीलिए हाँ, उसको तो साक्षी का मम्मी को तो पैजल कर दिया। हम तो नहीं, जो मिलने आते थे रिलेटिव वही सब बोलते थे ग्रह दिखाओ, हाँ ग्रो दिखाओ, ग्रो का चक्कर से हो रहा है। तो उसी टाइम में उस साल में 2023 में साक्षी सियालदा चर्च में आया था, हम लोग छोटा फेलोशिप में। सब कुछ हो जाने के बाद साक्षी के लिए हम लोग सब मिल के दुआ किया, और ना तो हवन करने के लिए बोला, ना मादुली देने के लिए बोला, ना पत्थर पहनने के लिए बोला, कुछ नहीं बोला। लेकिन चंगाई कौन दिया? हम नहीं दिया, परमेश्वर प्रभु यीशु दिया। और उसी टाइम से अभी वो के गवाही दे रहे, अभी 10 क्लास वो पढ़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। यही परमेश्वर को परिकल्पना है, यही परमेश्वर को क्या काम है। तो हम लोग को एक एक टाइम में सोचते हैं, बहुत आदमी लोग दिखावटी, हवन करने से एक तो दिखावटी होता है, पत्थर पड़ने से एक तो दिखावटी होता है। हम लोग अगर गया गुरुजी का पास, अगर मिलने से गुरुजी अगर 2000 5,000 रुपया ले लेगा, 5,000 रुपया, 1 रुपया आप यहाँ पर भेज रखिए, तब आप लोग सोचेंगे गुरुजी के पास 5,000 रुपया दिया ना, काम ऐसा ही होगा। अगर बिना पैसे में वो काम नहीं होता। जैसा आप लोग सोचते हैं कुछ तबीयत खराब है, अगर आप लोग, हम लोग को तो आदमी है ना, कुछ तबीयत खराब है, एक काम करिए, तबीयत खराब है होम्योपैथी खाइए। अरे होम्योपैथी पानी का दवाई क्या काम होगा, एलोपैथी जल्द से जल्द काम करेंगे। हम लोग होम्योपैथी के ऊपर में आस्था नहीं रखते, तो लेट करता है, टाइम ज़्यादा लगेगा। हम लोग अभी चुटकी से काम मांगते हैं, ये होम्योपैथी पता है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लोग के जीवन में ये जो जहर है, ये जो पूरा जहर है, ये वचन, क्योंकि वचन यहाँ पर भजन संगीत 107:20 पर क्या बोल रहे हैं? भजन संगीता 105 और 20 का परमेश्वर का वचन देखो क्या बोल रहे हैं। वचन में ये जो वचन अभी जो पढ़ रहे हैं ना, ये वर्ड ऑफ गॉड कितना पावरफुल है, अगर देखेगा तो सोच नहीं सकते। क्या बोल रहे हैं? भजन संगीत 107 का 20 पर, 107 का 20 पद देखिए, पढ़िए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 107 वर्स 20, भजन संगीत 107 हाँ। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। उसको वचन के द्वारा किसका क्या करते हैं? चंगा करता। कोई बाबा हाथ लगा के, माथा में हाथ लगा के चंगाई नहीं होता है। चंगाई कौन क्या करता है? वचन हम लोग को चंगाई करता है। उसको वचन भेज के, तुम अगर बिहार में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जर्मन में हो, जहां पर हो, उसको वचन भेज के, मतलब ये वचन वर्ड ऑफ गॉड इतना पावरफुल है, भेज के तुमको चंगाई करेंगे, तुम्हारा विनती को सुनेगा, तुम्हारा आंसू को देखेंगे। क्योंकि आज जो है, जो सिस्टर तुम जब यहाँ पर जब गवाही दे रहे, तो भीतर में क्या हो रहा है? आंसू निकाल रहा है ना। क्या होगा 8 तारीख को वो जो आंसू जो निकाला, हम लोग यहाँ पर देखा कुछ पल के लिए, लेकिन घर में जाते जाते भूल जाएगा तुम क्या किए। लेकिन एक आदमी तुम्हारा आंसू को मूल्यों को देते हैं। कौन? वो परमेश्वर प्रभु यीशु। क्या करते हैं आंसू? भजन संगीत 156 को, और वहाँ पर 8 पद देखिए, साम 56 वर्स 8, भजन संगीता 56 वर्स 8 देखिए, वो आंसू को क्या करते हैं? ये जो तुम रोया ना, क्या किया? देखो वो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। क्या तू मारे का फेरने का हिसाब रखता है? मतलब यहाँ पर जितने लोग हैं, आपका मर्जी से नहीं आया, वो पहले से आपको योजना बनाया। आज ये 5 तारीख को महीने 5 तारीख को यहाँ पर आएंगे, ये फिर मारे को हिसाब रखता है, इसीलिए आप यहाँ पर लेके आया। उसका बाद क्या बोल रहे हैं? तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। कौन? मेरा आंसू कुप्पी में, मतलब तुम्हारा जो आंसू इतना महत्वपूर्ण है, वो परमेश्वर कुप्पी में रखता है। और यहाँ पर जाके क्या बोला? मेरा जो रिजल्ट, मेरा काम, मेरा कुछ ये जो गड़बड़ी है, तुम जो अभी जो बोला, तुम्हारा मम्मी जो बोला, और संग संग क्या किया? लिख के रखा। क्या बोला उसका बाद? क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हाँ, मतलब परमेश्वर आपको प्रार्थना लिख के रखा। जैसा आप लोग दुआ कर रहे हैं, हम लोग को जो रेवरेंड काशीनाथ बसा क्या किया? आप वो टेक्स्ट को लिख के रखा
क्या क्या धन्यवाद दिया, क्या क्या नाम बोला। वो यहाँ पर आके खड़ा होके देख देख के प्रार्थना कर रहे हैं ना। तो परमेश्वर भी ऐसा ही है। परमेश्वर आप लोग जो दुआ किए वो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दुआ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को कंटिन्यू आपके लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है, क्योंकि ये जो आशा लेके परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर आपके जीवन को देख रहे। तो क्या है आपके जीवन में, इसीलिए आया होप, आशा। उसका बाद खोलिए, इब्रानी खोलिए, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 19। इब्रानी 6:19 में परमेश्वर का वचन देखिए क्या बोल रहा है। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 19 देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। ये जो आशा, होप नहीं, आशा है ना तुम लोग को यहाँ पर कुछ पाने के लिए, उसको बात क्या बोल रहा देखिए, इब्रानी 6:19। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, वो आशा प्राण के लिए ऐसा कैसा है, लंगर है। मतलब आप खेत में जब देखेंगे तो लंगर होता है ना, गाय के पीछे में लंगर लगा देते हैं ना, तो लंगर क्या करते हैं, लंगर का क्या काम है, क्या काम है लंगर का, साक्षी जानता है लंगर का क्या काम होता है। वो मिट्टी को हल्का कर देते हैं, खेत को जोतता है, और मिट्टी को क्या करते हैं, बड़ा बड़ा तो तोड़ तोड़ के उसको पूरा एकदम कर देते, जैसा अच्छा से पौधे हो सकते नहीं। तो पहले जमीन क्या थे, ऊंचा नीचा इतना थे, लेकिन लंगर क्या करते, पूरा चला चला के उसको क्या करते हैं, मिट्टी को ठीक करते हैं। करने का बाद क्या करते हैं, बीज को जब पानी डालता, डालने के बाद बीज देने का बाद, रख देने का बाद वो। तो आज ये क्या है, ये जो ऊंचा नीचा है, आज तुम यहाँ पर आया, परमेश्वर वचन के द्वारा उसको तुम्हारा खेत को बनाया, तुम्हारा वो बनाया, और होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तुम्हारा पास आके तुम्हारा विश्वास जितना स्ट्रांग होगा उतना फल जल्द से जल्द मिलेंगे। लेकिन साक्षी का मम्मी सब कुछ करने का बाद जब विश्वास किए, एक ही बात है उसको बोला, आप विश्वास करते परमेश्वर इस परिस्थिति में आपको चंगाई दे सकते, यही बात हम पूछा है कि नहीं। हाँ साक्षी भी थे, तो उसको हम कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, तुम विश्वास करते चाहता है तुम चंगाई होते, बोला हाँ, दिल से बोल रहे हैं हाँ चंगाई चाहता है। सब कुछ करने के बाद जब दिल से जब बोलता है तो परमेश्वर जल्द से जल्द, ये मेरा मैजिक नहीं है, तो परमेश्वर आके उसको खड़ा कर दिया। आज वो हर गांव में, हर आदमी को, हर रिलेटिव को, हर रिश्तेदार को ये बात बता रहे, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ किए, लेकिन हम जानते मेरा बेटी चंगाई हुआ परमेश्वर के प्रभु यीशु के द्वारा। हालेलुया। मेरा मोहल्ला पड़ोस जो मेरे को बोलता है प्रार्थना कीजिए, हम उनके लिए करते हैं। हम मने तो नहीं कभी आते थे, दोबारा वही जो चिंता करवाए थे घूमते हाँ, वो भी तो विश्वास तो हो ही गया था, पर मुझे इनका भी देखे तो इसी वजह से एक बार बोलते हैं, हाँ, मेरा नाती जब मेरा लड़की सब बेंगलोर गए थे, तो मेरा लड़की मैंने छोड़ के चली जाती, छोटा छोटा बच्चा है, दोनों बहन गई है, वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, माँ है नहीं घर में, अब वो संभाले नहीं जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। अब हम जब फोन कर रहे थे रोई रहा, जब फोन कर रहे थे रोई रहा, जाता है बच्चा 3-4 घंटा बच्चा रोया। अचानक ही मेरे फिर मन में याद आए प्रभु के, कि प्रभु तुम इतना बच्चा रो रहा है, उसका माँ घर में नहीं है, इतना रो रहा है बच्चा, कैसे समझेगी प्रभु। प्रभु आप उसको दया कीजिए, क्षमा कीजिए, बच्चा को चुप कराइए प्रभु, आप ही है प्रभु जो उसको चुप करा सकते हैं, और तो कोई है ना, उसको माँ बाप कोई नहीं है उसके साथ में, छोटा छोटा सा बच्चा भाई बहन है, तो कैसे चुप होगा प्रभु। प्रभु आप उसको चुप कराइए। माँ को खोज रहा है, फोन पर प्रार्थना करने लगे, आस्ते आस्ते बच्चे चुप हो गए। देखिए यही प्रभु का काम है। चुप हो गए। उस आंटी टाइम को में बोले थोड़ा हैं। सा मेरे लड़की को तो उतना नहीं दिया नहीं, तब वो मैंने विश्वास था, तब भी पर मैंने मन में चिड़चिड़ाहट लग रहा था, और मम्मी क्या बोल रही, मम्मी क्या बोले, मम्मी कुछ भी बोल रहे, तू चुपचाप रहा, देखते हैं प्रभु क्या करते हैं। हाँ फिर घर के लिए भी समस्या हुआ था, फिर किए तो थोड़ा बहुत ये हुआ है, लेकिन थोड़ा गाड़ी वाला एक खतरा है, तो वो भी चला जाएगा, लेकिन उसको हम लोग को क्या करना है, विश्वास। तो विश्वास में परमेश्वर हम लोग को ऐसा तरफ चंगाई देगा। इसका बाद देखिए अब मतलब आप लोग एक वचन को खोलिए, भजन संगीता 42 वर्स 5।
भजन संगीता साम 42 वर्स 5। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्यों आप दुखित हो, क्यों दुखित हो, हे मेरे मन क्यों दुखित हो। आज यहाँ पर तुम लोग हैं तो आज को क्या करना है, तुम लोग यहाँ पर आया, तुमको भी बोल रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा, रविंद्र, तुमको भी बोल रहे हैं परमेश्वर का पास आज जो मन लेके आया, आज तुम्हारा जो कुछ बोझ, जो कुछ सोच, जो कुछ चिंता किसके ऊपर में डालना है, प्रभु यीशु का ऊपर में डालिए। और डालने का बाद क्या होगा, रिलीज, एकदम रिलीव हो जाइए, शांत हो जाइए। तुम एक ही बात बोला, हम सबसे बड़ा राजा परमेश्वर प्रभु यीशु के पास मेरा बोझ को डाल दिया। और उसको ऊपर में जो डाल देते हैं तो क्या करते हैं, आपको परेशानी का, आपको ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा चिंता कौन करता है आपको परिवार में, आपका पापा नहीं, आप क्या बोला, आप पापा चिंता करते हैं। आप लोग को एडुकेशन, आप लोग को खर्चा पानी, कैसे तरह परिवार को चले, कौन चिंता करता है, पापा चिंता करता है, रात दिन उसको परिश्रम करता है आपको परिवार को पाल पोस के लिए। इसीलिए परमेश्वर बार बार करके, मेरे भी पापा हैं, तुम्हारा पापाओं के भी पापा है, और परमेश्वर प्रभु यीशु है। और जब हम लोग उसके ऊपर में सब कुछ बोझ को डाल देते हैं तो परमेश्वर बोल रहे, आज से तू आज मत सोच, तुम्हारा यही है रविंदर, एक ही बात है, हम मेरा चिंता प्रभु यीशु के ऊपर में छोड़ दिया, वो मेरा मार्ग में लेके चलाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु है। देखिए वहां पर क्या बोल रहे हैं, भजन संगीता 42 का भाई, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। क्या 8 तारीख को रिजल्ट है, अंदर अंदर में क्या है, बैकुल है। सर जी बार बार करके तुमको बोल रहे हैं ना, अंदर अंदर में तू बैकुल है। 8 तारीख क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा, टेंशन, खाना वाना सब कुछ, एक एक टाइम में टेंशन में 4-5 बजे पोटी भी चला जाता है ना, होता है ना टेंशन में। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरे प्राण, मेरे क्या प्राण क्यों अंदर अंदर में किया है, गिरा जाता है, और क्यों व्याकुल है, और परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हाँ, परमेश्वर के ऊपर में आशा लगा जाए, और क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूं। आमेन, हालेलुया। कमिंग जो मान थे, रविंद्र आके यहाँ पर गवाही देगा, सचमुच 1 महीने का भीतर में परमेश्वर बहुत सुंदर रास्ता दिखा दिया। आएगा ना, गवाही देना देगा क्या, आके गवाही देगा क्या। हाँ, मेरे पास नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु के पास। हम कुछ नहीं करता, हम आदमी है, तुम भी आदमी है, सब कुछ परिकल्पना परमेश्वर प्रभु यीशु बनाता है। और जब यहाँ पर आके हम लोग, यहाँ पर कितने लोग गवाही देते हैं, जब हम लोग मानिक तला में जाता है तो कितने लोग उपवास में गवाही देते हैं ना, धन्यवाद देते हैं। मैंने एक गवाही में 2 घंटा लग जाता है, सब आदमी मैंने गवाही देते, उसके जीवन में प्रार्थना का फल। एक आदमी का कैंसर बीमारी थे, पिछला महीने आप लाइव देखा ना, बिहाला में आया था, उसको 12 केमो आया। तो 12 केमो का बाद डॉक्टर लोग बोला ये नामुमकिन नहीं, 3 आवर्स टाइम है उसको बचने के लिए। तो उसी वो सिस्टर, उसको कैंसर हुआ, कैंसर का 4th स्टेज। तो अगर आपको कोई कैंसर का बीमारी जब से सुन लेता है तो तब से वो मृत्यु का आगे जा रहे हैं, घबराहट होगा और मृत्यु को जाएंगे। 12 केमो ले लिया। तो उसके लिए हम लोग भाई मोबाइल फोन में रोज प्रार्थना किए, प्रभु कैंसर का आंसर तेरा तुम्हारा पास है। हाँ, तो 12 केमो लेने का बाद जब हम लोग प्रार्थना करने का बाद डॉक्टर के पास जब गिने के बाद डॉक्टर लोग अचंभ हो गया। ये 12 केमो लेने का बाद डॉक्टर बोला कुछ आपको केमो का जरूरत नहीं, आप ओरल दवा लीजिए, आप अच्छा हो गया। कैसे तरह हुआ, मेरा विज्ञान से नहीं है। और प्रभु वो गवाही सुना ना, वो बच्चा लेके और वो आके रो के धन्यवाद कर रहे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु हमको चंगाई दिया। हालेलुया। प्रभु ऐसे ही चंगाई देने वाला है, ऐसे ही काम करने वाला है। वचन में लिखा है यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, कल और इगाने युग परमेश्वर अभी भी काम करता है और वो आपका जीवन में करेगा। ये प्रभु का मेरा प्लान नहीं है, यहाँ पर आया
सक्सेना मामी जब काल जब फ़ोन किया बहुत व्यस्त थे, उसके बाद में मैंने एक टाइम में संग नहीं उठा सकते, लेकिन काम एक टाइम में काम तक तो तुरंत हम फ़ोन किया, बोले ऐसा आएंगे। हाँ, तो वो करने के बाद तुरंत जब उतर आप आइए, अगर पॉसिबल है तो आइए, आपको देखिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का एक्लेसिया चैप्टर, क्योंकि यहाँ आया मेरे परिकल्पना नहीं है, साक्षी का मामी को बोला तुरंत आ गया नहीं। एक्लेसिया चैप्टर 3 में परमेश्वर का सौद उपदेश, देखिए भजन संगीता के बाद नीति वचन के बाद सौद उपदेश है, और वहाँ पर 3 का 2 में देखिए परमेश्वर के वचन में क्या क्या काल है। देखिए उपदेश, सौद उपदेश 3 का 2 से पढ़िए। पढ़िए क्या लिखा है? जन्म का समय और मरण का भी समय। क्या? जन्म का समय और मरण का भी समय है, और बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। बोने का समय, अब उखाड़ का टाइम का समय है, और घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। तो अभी तुम्हारा क्या गया? घात, परिसरी जा रहे हैं ना, उसके बाद क्या समय आएगा? ढा देने का समय और बनाने का भी समय। हाँ, और रोने का समय और हंसने का भी समय। तो अभी क्या रोने का समय चल रहा है ना तुम्हारा भी रोने का समय क्या होगा 8 तारीख को, ये रोने का समय, और छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। उसका बाद सब कुछ टाइम है। ये जो तुम्हारा टाइम जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर तुम आया, ये अच्छा दिन आने वाला है। ये सरकार का डायलॉग नहीं है, ये परमेश्वर का डायलॉग है। और क्या बोल रहे हैं? पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय। हाँ, और गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय। हाँ, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय। हाँ, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, और मारने का समय और सीने का भी समय। चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। हाँ, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय। लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। हाँ। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? देखो सब कुछ क्या होता है? समय होता है। यहाँ पर आया, ये परमेश्वर को पहले से जो था। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु यहाँ पर इसीलिए लेके आया, ये कुछ पर्पस है। इसीलिए आशा को मत निराश मत होइए, क्योंकि आज आप क्या कर रहे हैं, जो हम बार बार करके बोलते हैं, ये जो हम लोग कुर्सी में बैठे हैं, आप लोग इतना आदमी बैठे हैं, हम लगभग आप लोग सोच लीजिए, आपको जो चेहरा है मैक्सिमम अगर 40 kg करके आपको वेट है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45। आप जो चेहरा है रविंद्र को छोड़ के, रविंद्र मैक्सिमम 55 का 65। देखिए तो ये चेहरा देख के पता चल जाता है। तो अगर 45 इंटू 1 2 3 4 5 6 सर कत 45 इंटू 6 है 270, मतलब 270 kg आप लोग यहाँ पर बैठे कुर्सी में। आपका मन में ऐसा घबराहट आ रहा है कुर्सी गिर जाएगी? कितना? 2 क्विंटल 70 kg आप वो यहाँ पर बैठे हैं, हम भी 70 kg यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, तो सब लोग यहाँ पर बैठे, आप लोग को ऐसा है, ऐसा हो रहा है जो गिर जाएंगे बाबा, ये छात अगर गिर जाएंगे नहीं। ये जो ये फेथ को पाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, ना तो पूजा करना है, ना तो मंदिर में जाना है, ना चर्च में जाना है, ना गुरुद्वारा में जाना है, ना मजार में जाना, कहीं पर जाना नहीं। ये फेथ जब पैदाशी से ये फेथ परमेश्वर गिफ्ट आपको दे देते हैं। इसी वजह से आप लोग एकदम 100% कॉन्फिडेंस है, आप लोग ये 270 kg यहाँ पर बैठ गया, कुछ नहीं है। यहाँ पर इज द नेचुरल फेथ, ये फेथ नेचुरल फेथ। उसका बाद यहाँ पर आया देवदत्त बाबू सब जगह में पानी रखा ना, तो हम आया, देखो आधा पानी कर दिया, कितना पूरा थे आधा कर दिया। हम यहाँ पर आके सोचे पानी में कुछ मिलावट है कि नहीं, नल का पानी का, नर्दमा का पानी, हाँ फिल्टर का पानी का, टैप कॉल का पानी, वो दिए, हम तुरंत खोला, हम खा लिए, पी लिए ना। इस फेथ का नाम है
ह्यूमन फेथ। एक फेथ है नेचुरल फेथ, तुम लोग बैठे हैं, और सेकंड फेथ इज द ह्यूमन फेथ, मतलब हम देवदत्त बाबू को जानते हैं, आंटी को जानते हैं, इसी वजह से वो जो पानी रखा अच्छा पानी है, उसको हमसे फेथ मतलब ह्यूमन, आदमी को ऊपर में विश्वास। ओके, नेक्स्ट फेथ इज द डिवाइन फेथ, मतलब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पर आके काशीनाथ क्या बोला, अरे बाप रे बाप, ये तो एसी बना दिया, पूरा एकदम चैपल चर्च बना दिया, यहाँ पर इतना ठंडा है। हाँ, ये घर ठंडा बन गया, इतना घर में इतना कुछ ठंडा, बाहर में इतना गर्मी, लेकिन यहाँ पर पूरा ठंडा है। ये जो ठंडा आपको बदन में छू रहे हैं, आपको कभी वो लग रहे जो ठंडा यहाँ से आ रहा है वहाँ से नहीं, आपको बदन को छू रहे हैं ना, बदन को छू रहे हैं, पंखा का हवा को बदन को, कहाँ से हवा आ रहे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आपको महसूस कर रहे अंदर से। परमेश्वर को विश्वास करने, डिवाइन फेथ जिसको दिखाई नहीं देते, आपको महसूस करना है अंदर से। तो फेथ का 3 को बोला, एक नेचुरल, सेकेंड ह्यूमन फेथ, थर्ड इज डिवाइन फेथ जिसको दिखाई नहीं देते, उसको हम लोग महसूस कर रहे हैं, मतलब ठंडा हवा को महसूस कर रहे हैं, हवा को महसूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन को दिखाई नहीं दे रहे लेकिन ऑक्सीजन ले रहे कि नहीं ले रहे सब लोग। अगर नाक बात कर देगा तो बस मेरा नाम 17 हो जाएंगे। तो मेरा जो दिखाई नहीं देते हैं उसको अंदर से सेम टाइप इज द बीस फेथ, डिवाइन फेथ इज द परमेश्वर प्रभु यीशु, दिखाई नहीं देते लेकिन अंदर से तुम्हारा काम करेंगे। हालेलुया, यही परमेश्वर का प्रभु का यही काम है, यही परमेश्वर हम लोग के जीवन में करते हैं। हम लोग दिखावटी करता है, हम लोग खाना देते हैं, हम लोग मंदिर में जाके बहुत खाना देते हैं। हाँ, कभी देखा भगवान आके खाना खा रहे हैं? नहीं खाते हैं। उसका बाद क्या करते, 10 मिनट के लिए बाहर चला जाता, नहीं भगवान खाएंगे, अभी बंद कर देते घर, उसका बाद खोल के फिर भी हम करेंगे, खाता नहीं है। अगर भगवान सचमुच जब से खाना शुरू कर देगा, आदमी लोग खाना नहीं देंगे क्या हाँ कि नहीं? तो नहीं देगा। तो इसीलिए परमेश्वर हम लोग को जीवन में जो होप है, जो दिखाई नहीं देते, अंदर से बिलीव करना है। आपको एप्पल में क्या है? विटामिन क्या है? विटामिन क्या क्या है? विटामिन ए है और डी है, सी है, बहुत कुछ है। तो देखा, तो एप्पल जब खा लेते हैं तो सब कुछ विटामिन ए बी सी आपको शरीर में लगता है। लेकिन कभी काट के देखा कहाँ पर ए है, कहाँ पर बी है, कहाँ पर डी है, कहाँ पर सी है, दिखाई नहीं देते। ये अंदर में जाके भीतर में काम करते हैं नहीं। तो इसमें हम लोग को जीवन में परमेश्वर को दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हम विश्वास करें, वचन में हर जगह में, एक अंधा प्रभु यीशु के पास आके बोला, प्रभु हम देखना चाहता है, तो प्रभु यीशु बोला जाओ, घर चला जाओ, तुम्हारा विश्वास तुमको चंगाई कर दिया। अगर रविंद्र विश्वास करेगा तो उसको जीवन में सफलता आएंगे। अगर साक्षी का मम्मी को विश्वास करेगा तो उसको जीवन में चमत्कार होगा। जो कुछ यहाँ पर तुम जो अगर विश्वास करेगा तो सर अभी जो बोला, तुम्हारा एक्सेलेंट रिजल्ट आएगा। थैंक यू जीसस, आई बिलीव दिस वर्ड। हम विश्वास करते हैं प्रभु, ये 8 तारीख को बढ़िया से रिजल्ट मिलेगा। और ये बात को तुम्हारा दोस्त लोग को बोलेंगे, 8 तारीख को एक्सेलेंट मेरा रिजल्ट आएंगे, वो लोग सोचेंगे भाई कहाँ, कौन गुरुजी को दिखाया रे भाई, कौन बोला तुझको इतना एक्सेलेंट रिजल्ट आएंगे? तुमको बोलेंगे ना, हाँ पूछेंगे ना, तुम्हारा दोस्त लोग को बोलेगा मेरा अच्छा रिजल्ट आएंगे। तो वो लोग को करके देखिए, मेरा एक है वो परमेश्वर जिसको दिखाई नहीं देते, वो हमको बताया एक्सेलेंट रिजल्ट होगा। तो इसीलिए परमेश्वर हम लोग को जीवन में बोल रही आशा को निराश होने मत दीजिए। उसका बाद एक वचन को देखिए, पहला हम लोग देखिए भजन संगीता खुला ना, भजन संगीता 25 का 21 में देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। हम लोग खोलिए भजन संगीता 25 वर्स 21। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फिर पढ़िए, हाँ पढ़िए। भजन
हाँ, खड़ाई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे। खड़ाई और सिधाई सिधाई उसको क्या रखे? सुरक्षित रखे। हाँ, और क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा। तो किसका ऊपर में आशा है? परमेश्वर के ऊपर में आशा रखना है। और लास्ट बोल के हम खत्म करेंगे। भजन संगीता 31 का 24 देखिए। भजन संगीता 31 का 24। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हे यहोवा आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। धीर हो जाओ और हृदय में प्रभु आज से तुमको रविंद्र ये बोलेगा, थैंक यू जीसस, मेरा एक्सीलेंट जॉब मिल रहा है, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। ये आपको कंटिन्यू बोलना है। क्या होगा? और ये तुमको कंटिन्यू बोलना है अंदर से। कुछ करना नहीं है। आप चलते फिरते थैंक यू प्रभु यीशु, हम तेरे धन्यवाद करते, मेरा अच्छा जॉब लग गया, हम तेरे धन्यवाद करते। ये कंटिन्यू अंदर से बोलिए। आपको यहाँ पर अगर पढ़ाई लिखा नहीं आता है, एक टाइम में बार बार करके जब पहली शख्सी आया तो उसको बहुत सब्जेक्ट में वीक थे, लेकिन उन लोग को बोला जब पढ़ने का टाइम में तुम लोग प्रार्थना करो, प्रभु ये सब्जेक्ट को हमको समझाइए, तो अभी वो अच्छा हो रहा है। तो इसको होगा क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर में अगर विश्वास करेंगे तो प्रभु हम लोग को जीवन में नया काम करें। तो आइए हम लोग आँख को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। सदा ये वचन काफी है, यीशु ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हाँ प्रभु तेरे धन्यवाद करते प्रभु, तू महान और जिंदा खुदा परमेश्वर प्रभु, तू हर एक विनती और प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर प्रभु। रविंद्र प्रभु इतना दूर से प्रभु तेरे पास आया प्रभु, उसके जीवन में जो कुछ प्रभु दाग लगा प्रभु, जो कुछ शैतान बार बार करके अंधेर कर ऊपर में खींच रहे प्रभु, हर एक शैतान का शक्ति प्रभु, ताकत के प्रभु, हम यीशु के लहू से प्रभु आग को झील में डाल रहे प्रभु। रविंदर को प्रभु यीशु के लहू से बांध रहे प्रभु, कोई ऊपर में शैतान का हाथ छू नहीं सकते प्रभु, तू दया कर प्रभु। क्योंकि प्रभु ये प्रभु आज प्रभु जो 6 आत्मा प्रभु तेरे पास आया प्रभु, ये 6 आत्मा को तेरे हाथों में समर्पण करे प्रभु, कोई शैतान छू नहीं सकते प्रभु। ये आत्मा गवाही देगा जो परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया प्रभु। हालेलुया प्रभु, तेरे धन्यवाद करते प्रभु, सारे आदर महिमा तुमको दे रहे प्रभु। उस परिवार को, उसको घर को यीशु के लहू से हम बेड़ा लगा रहे प्रभु। कोई बाहर से आने वाला शक्ति, कोई आत्मिक आने वाला शक्ति, कोई कूट नजर छू नहीं सकते प्रभु, तू दया कर प्रभु। हो प्रभु तू आत्मा से भर दे प्रभु, तू दया कर प्रभु, तेरे आत्मा से दया कर प्रभु। ओ तेरे महिमा प्रशंसा कर प्रभु। प्रभु विशेष करके प्रभु आज प्रभु 8 तारीख को प्रभु हर एक वेस्ट बंगाल में, हर एक
हर जगह में प्रभु जो एग्जाम का जो रिजल्ट HS का रिजल्ट आने वाला है, सबको तेरे हाथों में समर्पण कर रहे प्रभु। बहुत कुछ प्रभु वो लोग निर्णय लेते हैं प्रभु, जब कोई नंबर कम होता है तो बहुत आदमी लोग खुदकुशी कर देते, डेथ होता है प्रभु, बहुत आदमी लोग घर में नहीं जाते। लेकिन प्रभु वो आत्मा को, अगर शैतान को आत्मा को हम यीशु के लहू से प्रभु आग को झील में डाल रहे प्रभु। प्रभु सबको तू बचा, सब छोटा बच्चा को बचा प्रभु, तेरे महिमा प्रशंसा कर प्रभु, तू दया कर प्रभु। ओ प्रभु तेरे आत्मा से भर दे प्रभु, सारे आदर महिमा तुमको दे रहे प्रभु। इतना दूर से आया प्रभु, उसका वचन में लिखा प्रभु तू विश्वास कर और प्रभु को ऊपर में सब कुछ छोड़ दे प्रभु। हालेलुया प्रभु, तेरे धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया प्रभु, इस घर पे तू लेके आया प्रभु, सिस्टर ईवा को प्रभु, देवदत्त बाबू को अभी तुम्हारा समर्पण करता, दूर संतर को भी तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु। दया कृपा करुणा से भर दे प्रभु। डॉक्टर सिमिक को तेरे हाथों में रख दे प्रभु, वो भी प्रभु कैंसर बीमारी है प्रभु, हम विश्वास करते प्रभु, उसको तू चंगाई दे दिया प्रभु, वो तेरे धन्यवाद करेगा प्रभु। थैंक यू प्रभु, तेरे हाथों में समर्पित कर प्रभु। जितने लोग हैं प्रभु सबको तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु। ओ लॉर्ड प्रभु तू दया कर प्रभु, सारे आदर महिमा तुमको दे रहे। धन्यवाद यीशु के नाम में चाहते हैं, आमीन आमीन और आमीन।